Hello students, we are starting the second part of the chapter The Address today. In the previous part, we have read about the narrator. During the wartime, the narrator's mother had given all her belongings to a lady, to one of the acquaintance of her, Mrs. Darling, so that she could keep all the household belongings safe with her and it should be returned after the war was over. But it never was sent again. So now the war was over and the narrator wanted to see all her belongings again because these were the memories now as her whole family was killed in the war. So she had come to Mrs. Darling's house and Mrs. Darling refused to meet her. Now she was thinking, while going back in the train, she was thinking about all the previous visits when Mrs. Darling had come to her house. But gradually everything became more normal again. Now the narrator is telling about after the war, everything became more normal again. Liberation हुई, उनको आज़ादी मिली, फ्री हुए, and now everything became normal. Bread was getting to be a lighter color. As you have heard, as you have read in the chapter, Nazis or Hitler chapter, in whatever you have heard about there, that when the war was going on, the bread had become expensive. So the people could not afford, and now it was again at that time जो ब्रेड जो थी वाइट कलर के ब्रेड वार से पहले बना करती थी, मैदे की ब्रेड बना करती थी. नाउ वार के टाइम पे दैट हैड बीन एक्सचेंज, दैट हैड बीन रिप्लेस्ड बाय द होल व्हीट फ्लोर. सो नाउ अगेन व्हेन द वार वाज ओवर, फिर से वापस वही कंडीशंस आई. ब्रेड वाज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर. इट मीन्स ब्रेड भी जो थी वापस मैदे की बनने लगी और जो भी कुछ उनका था वो सारा का सारा वापस लाइटर कलर की ब्रेड बनी. देयर वाज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड. अब तुम्हें वो बेड भी मिल गया है जिस पे तुम आराम से बिना डरे सो सकते हो. इट मीन्स द नरेटर इज टेलिंग अबाउट हर सेल्फ. ड्यूरिंग द वार शी वॉज हाइडिंग everywhere where she could find a place. But now when the war was over, now she had a stable home, stable room and a bed also where she could sleep without having a fear of war. A room with a view you were more used to glancing at each day. एक ऐसा रूम जिसको अब तुम डेली देख सकती हो, बिकॉज वार के टाइम में उसको जगह जगह बार बार हाइड होना पड़ रहा था. बट नाउ शी हैड अ स्टेबल रूम, फिक्स्ड रूम. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. और एक दिन अब मुझे याद आया, नरेटर को याद आया कि मुझे अब वो चीज़ें जाकर देखनी चाहिए. मुझे अपनी वो पोजेशंस जो हैं वो देखनी चाहिए. वो वहीं पर ही, अभी उसी एड्रेस पर ही होंगी. कौन से एड्रेस पर? 46. आई वांटेड टू सी देम, टच, रिमेंबर. After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. Now the narrator wanted to go a second time also, and this time now a girl of about 15 opened the door to me. अब इस टाइम जो थी 15 years की एक गर्ल ने उसके लिए डोर खोला. एंड द नरेटर asked her if her mother was at home and she replied, no, my mother's doing an errand. मेरी मदर छोटे मोटे काम करने के लिए बाहर गई हुई है. एरेंड होता है शॉप्स पे सामान खरीदने जाना या छोटा मोटा और भी कुछ काम होता है वो खरीदने के, वो काम के लिए जाना. नो मैटर, द नरेटर सेड, आई विल वेट फॉर हर. आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज. अब वो गर्ल मुझे अंदर लेकर जा रही है एंड आई वॉज फॉलोइंग दैट गर्ल. आई वॉज बिहाइंड दैट गर्ल. एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर. बहुत ही पुराना सा, पुराने स्टाइल का आयरन हनुक्का, ये कैंडल फेस्टिवल होता है कुछ, तो उसके कैंडल होल्डर्स होते हैं कि कैंडल्स जलाई जाती हैं. सो दैट वाज पूरा कैंडल का वो जो पूरा का पूरा एक पीस होता है जो दीवार पे ऊपर लगाया जाता है, एक झूमर टाइप जो होता है. हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, पूरा कैंडल का ग्रुप होता है ये कैंडल्स जिसमें जलाई जाती हैं. वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वाज मच मोर क्यूम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक. बट नरेटर इज सेइंग
because it also belonged to this candle holder also belonged to the narrator, and she said we have never used it. क्यों यूज़ नहीं की थी कभी भी? Because it was much more cumbersome than a single candlestick. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. Cumbersome means it was difficult to use. कि एक सिंगल कैंडलस्टिक ईजी था यूज़ करने के लिए as compared to the whole candle holder. Won't you sit down? Asked the girl. Now the girl was asking the narrator to sit down. She held open the door of the living room. वो डोर को पकड़ के खड़ी थी वहाँ पर. And I went inside past her. और मैं रूम के अंदर आई. I entered the room. I stopped. And when the narrator entered the room, she stopped horrified. She was afraid. I was in a room. I knew and I did not know. This line has a deeper meaning here. She is saying I was in a room. I knew. मैं उस रूम को जानती थी. लेकिन नरेटर तो पहले कभी यहाँ पर आई भी नहीं है, तो कैसे जानती थी? एंड स्टिल शी इज सेइंग शी डिड नॉट नो. दोनों ही चीज़ें वो एक साथ कॉन्ट्राडिक्टरी लाइंस जो हैं, शी इज सेइंग हियर शी न्यू द रूम एंड शी डिड नॉट न्यू द रूम. इट मीन्स ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ हर एंड हर मदर वर देयर इन दैट रूम. कि उस रूम को देखते ही उसे एकदम से अपना सारी की सारी बिलोंगिंग्स याद आई, कि उसको लगा कि ये तो मेरा रूम है, ये तो हमारा घर है, मेरी सारी चीज़ें हैं. बट डिड नॉट नो. लेकिन फिर भी मैं इस रूम को नहीं जानती. क्यों नहीं जानती? वट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ओप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर. शी इज सेइंग कि मैं इन चीज़ों को सभी को देखना तो चाहती थी, बट विच ओप्रेस्ड मी, अब लेकिन ये मुझे डोमिनेट कर रही है, मुझे टॉर्चर कर रही हैं इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर. Because they were just put there in this room in a strange way, it did not suit me. I was feeling uncomfortable. Or because of the tasteless way everything was arranged. Because they were put there, they were kept there in a tasteless way. बस ऐसे जैसे बेकार सा तरीके से उनको वहाँ एक तरह से रखा गया है कि जिसकी जहाँ जगह होनी चाहिए, प्लेस होना चाहिए, they were not put that way. तो एकदम बिल्कुल ही जैसे किसी को टेस्ट ही नहीं है रखने का. In that manner they were arranged there. Because of the ugly furniture और द मगी स्मेल दैट हंग देयर. और जो वहाँ पर अगली सा फर्नीचर था और द मगी स्मेल होती है जो सीलन की स्मेल होती है, नमी की, डैम्प एटमोसफियर की स्मेल होती है, दैट वाज देयर इन दैट रूम ऑल्सो. आई डोंट नो, कहते हैं नरेटर ही सेइंग मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, पुराना फर्नीचर है उसकी वजह से, मगी स्मेल की वजह से, और द टेस्टलेस वे इन विच द थिंग्स वर अरेंज्ड देयर, आई डोंट नो. बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी. बट नरेटर इज सेइंग कि बट मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं साइड में देखूँ अब. द गर्ल मूव्ड अ चेयर फॉर मी. आई सैट डाउन ऑन द चेयर एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ. अब मैं जिस चेयर पर बैठी मैं वुलन टेबल क्लॉथ को देखने लगी, घूरने लगी. और मुझे क्यों घूरने लगी नरेटर? बिकॉज इट वॉज ऑल्सो बिलोंगिंग टू हर. आई रब्ड इट, मैंने उस पर हाथ घुमाया. माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग. आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न. और मैं उस पैटर्न को, उस डिज़ाइन के साथ साथ अपनी फिंगर्स जो थी चलाती रही. बिकॉज आई रिमेंबर दैट समवेयर इट वॉज बर्न फ्रॉम समवेयर ऑन द एज, किनारे पर देयर शुड बी अ बर्न मार्क, छोटा सा बर्न मार्क जला हुआ है ये कहीं से, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर, जो रिपेयर नहीं किया गया था. My mother will be back soon. The girl is saying, I have already made tea for her. Will you have a cup? Now the girl is offering the narrator a cup of tea. Thank you, it is said by the narrator. I looked up. The narrator looked up. The girl put cups ready on the tea table. The girl that belonged to the house. She had a broad back. कमर चौड़ी थी उसकी, just like her mother. She poured tea from a white pot. और उसने चाय डाली. All it had was a gold border on the lid. Now this white pot also, that also belonged to the narrator. So she was remembering, और वो जो चीज़ें देख रही है उसको वो सारी चीज़ें याद आती जा रही हैं. Now the narrator is thinking in her own mind that this teapot was a gold border on the lid. किनारे पर ढक्कन पर उसके golden border है. I remember. The girl opened a box and took some spoons out. Now the girl, she took some spoons out. That's a nice box. I heard my own voice. नरेटर कहते हैं कि मैं अपनी ही आवाज़ को सुन रही हूँ, मैं अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपनी ही आवाज़ आ रही है और मैं बोल पड़ी, बहुत अच्छा बॉक्स है ये. इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस. मुझे अपनी ही वॉइस स्ट्रेंज लग रही थी. एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम. Oh, you know about them. The girl said, you know about these spoons.
तुम जानती हो इन स्पून्स के बारे में? शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी एंड शी लाफ्ड। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक। गर्ल बता रही है उस नरेटर को कि मेरी मदर कहते हैं ये एंटीक पीसेज हैं, वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास बहुत सारी हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, और उसने इंडिकेट किया उधर रखें, सी फॉर योर सेल्फ, तुम अपने आप देख लो। बट द नरेटर हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। आई न्यू विच थिंग शी मेंट। मुझे तो पता था, नरेटर को तो पता था किस चीज़ों की बात कर रही है वो गर्ल। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। बस मैं उस टी टेबल पर स्टिल लाइफ को देखती रही। वाई शी इज सेइंग दिस स्टिल लाइफ? बिकॉज नाउ इट हैड गॉट नो मीनिंग, इट वॉज नॉट सीमिंग लाइवली फॉर हर, just as these items were kept in the narrator's house years ago. They were seemingly lively to her, but now at this time, just as these things were dead, they were just like the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. The narrator is saying कि बचपन में मैंने हमेशा से फैंसी किया था, इमेजिन किया था किस प्यूटर प्लेट पर, प्यूटर प्लेट्स मीन्स जिंक की प्लेट है ये, किस पर हमेशा एप्पल्स रखे होंगे अपनी मेरी टेबल पर। सो मैं हमेशा इमेजिन करती थी, बट यहाँ पे एकदम स्टिल लाइफ है, इसमें कुछ रखा नहीं है, मतलब एकदम टेस्टलेस है सारा यहाँ पे। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग। द गर्ल इज सेइंग कि हम इसको हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। वंस वी इवन, कि इन आइटम्स को, वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। नाउ द गर्ल इज सेइंग कि देखो वो जो दीवार पे लगी हुई है ना प्लेट्स, एक बार तो हमने उसमें से भी कुछ खाना खाया था। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि जो दीवार पर वॉल पे लगाई जाते हैं, हैंग की जाते हैं, उन पे खाना नहीं खाते हैं। बट द गर्ल इज सेइंग दिस, आई वांटेड टू सो मच। गर्ल कहते हैं मुझे बड़ा मन किया था खाने का, बट इट वाजंट एनीथिंग स्पेशल, बट कुछ भी स्पेशल नहीं लगा खाने के बाद। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, और इस टाइम तक नरेटर को वो बर्न मार्क, जब वो हाथ चला ही रही थी उस पर टेबल क्लॉथ पर, शी फाउंड दैट बर्न मार्क। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, एंड एट दैट टाइम गर्ल उसको, नरेटर को ध्यान से देखने लगी कि इसे कैसे पता यहाँ पे बर्न मार्क है। येस आई सेड, बट शी डिडंट आस्क एनीथिंग टू द नरेटर. The narrator herself replied, yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. तो नरेटर उसको आंसर करती है कि हाँ, जब तुम अपने घर में होते हो तो तुम उन चीज़ों को, अपने घर की चीज़ों को कभी भी इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते, तुम उन चीज़ों को नहीं देखते. यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग. बस तुम तभी देखते हो जब कुछ मिसिंग हो जाता है, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल. या फिर तुमने उसको रिपेयरिंग के लिए भेजा होगा कहीं पर, या फिर तुमने किसी को लैंड पर दे दिया होगा, लैंड कर दिया होगा, उधार दिया होगा, और जब वो मिसिंग होता है घर से तभी हमें उसकी याद आती है. अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड एट दैट टाइम ऑल्सो मुझे फिर से अपनी वॉइस जो है अननेचुरल लगी. आई वेंट ऑन. आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर. और नरेटर अब उस गर्ल को बता रही है कि एक बार मेरी मदर ने मुझे कहा कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी सिल्वर पॉलिश करने में. इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पुरानी बात है. एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे. एंड द नरेटर इज सेइंग कि शायद मैं उस दिन बोर हो रही थी, एंड परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल. और शायद मैं बीमार भी थी, इसीलिए मैं घर पर थी. एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर. मेरी मदर ने मुझसे पहले कभी ये बात नहीं कही थी. आई आस्क्ड हर विच सिल्वर इट शी मेंट. और मैंने अपनी मदर से पूछा किस सिल्वर की बात कर रही हो तुम, बिकॉज आई डिडंट नो दैट we have got silver also in our house. And she replied, surprised, that it was the spoons, forks and knives of course. और मेरी मदर ने रिप्लाई किया spoons, forks और knives, कटलरी की बात कर रही हूँ. And that was the strange thing, I did not know the cutlery we ate of was silver. और मुझे तब जाके पता चला कि जिस कटलरी से हम खाना खाते हैं, फॉक्स नाइव्स वगैरह जो हैं जिनसे हम डेली खाते हैं, वे सिल्वर की हैं. The girl laughed. After listening to it, the girl laughed. I bet you don't know it is either. I looked intently at her. Intently होता है बड़े ध्यान से. और नरेटर ने उस गर्ल को बहुत ध्यान से देखा और उसको कहती है कि तुम्हें भी नहीं मालूम शायद. The girl asked what we eat with, जिससे हम खाना खाते हैं. The narrator asked, yes, of course. Well, do you know? जानती हो तुम? She hesitated. She walked to the sideboard. अब वो कंफर्म करने जा रही है साइडबोर्ड की साइड. And wanted to open the drawer. I will look. मैं देखती हूँ. It's in here. But at that time the narrator jumped up. I was forgetting the time. मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहा. I must catch my train. She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? The girl is asking if you would like to wait for my mother.
But the narrator replied, "No, I must go. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can find my own way." The narrator said that she could find her own way. मैं अपने आप वापस चली जाऊँगी. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. और narrator को वो आवाज़ें आ रही हैं because the girl was looking for the spoons and forks. At the corner of the road, I looked up at the name plate. फिर से मैंने उस नेम प्लेट को देखा. जब कॉर्नर पर पहुंच गई, मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड had been at number 46. The address was correct, but now I didn't want to remember it anymore. This time, at last, when she had come to this house second time, but now, after going from here, the narrator did not want to remember the address anymore. What's the reason behind this? I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value. When severed from them, you see them again in the strange surroundings. The narrator is saying कि जब तुम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लिंक अप होते हो and these things were grasping your memory from a very long time, but now they have lost their value. अब उनकी वैल्यू फिनिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है. क्यों ख़त्म हो चुकी है? When severed from them, severed होता है when cut off from them, तुमसे सेपरेट कर दिया जाए उनको, तुमसे कट ऑफ कर दिया जाए. सेवर वैसे तो होता है कट ऑफ करना, बट हेयर वी कैन से कि तुमसे सेपरेट कर दिया गया उनको. एंड नाउ यू आर सीइंग देम अगेन इन द स्ट्रेंज सराउंडिंग्स. कि इतने टेस्टलेस वे में, इतने स्ट्रेंज एटमोसफियर में तुम उनको देख रहे हो, अपनी ही उन पुरानी चीज़ों को, तो अब वो चीज़ें तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती. सो दैट्स वाई द नरेटर डिडंट वांट टू रिमेंबर इट. And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows? फिर नरेटर कहते हैं मैं उनका करूँगी भी क्या, बिकॉज द नरेटर इज़ लिविंग इन अ स्मॉल रेंटेड रूम. किराए के एक छोटे से रूम में रहती है जहाँ पर जो वॉलपेपर है उसका श्रेड्स होता है, रिमेन्स मतलब फट चुका है पूरा का पूरा, और जो रिमेनिंग पार्ट्स जो बचे पेपर के स्टिल हंग अलोंग द विंडोज, विंडो से लटके हुए. इट मीन्स वॉल्स वर so much shabby now and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. और मेरे उस रूम में एक सिर्फ मुट्ठी भर कटलरी की ही नीड है, उसे ज़्यादा वहाँ पर ड्रॉर में आएगी भी नहीं. I resolved to forget the address. Now I determined to forget the address. I should not remember this address now. Of all the things I had to forget, that would be the easiest. The narrator is saying बाकी चीज़ों को भूलने से ज़्यादा, कि ये सामान को तो शायद ना भी भूल पाऊँ मैं, लेकिन एड्रेस भूलना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ईजी रहेगा. सो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीट. दिस चैप्टर इज़ डीलिंग विद द ह्यूमन इमोशंस. वी ऑल्सो think our belongings a lot. Whenever we are severed from them, we are cut off from them or separated from our belongings. देखो हमें कितना याद आती है. वैसे तो हम अपने घर में कभी नोटिस नहीं करते. We never notice a single thing in our house, but आफ्टर गोइंग फ्रॉम देयर हमें कुछ ना कुछ याद आता रहता है. मेरा वो वहाँ पर लगा हुआ है, या टेबल पर ये रखा है, या वट एवर द थिंग्स. एंड जब आपको ये पता है कि आपकी फैमिली की वो प्रीशियस आइटम्स थे एंड यू हैड लॉस्ट योर फैमिली, just the narrator had lost her family, so she wanted to have these belongings again, to see these belongings again. But after seeing these belongings in an just uncomfortable way, in a tasteless way, now she didn't want to take them again back. Now she wanted to forget the address. So this chapter deals with the human emotions and the sufferings during the war or after the war, how the emotions were changed. This chapter deals about this. Hope you have understood the chapter. Thank you.